Assalamu alaikum. Dear students, welcome to lecture number 11 of Introduction to Management, MGT 101. Let's first see what we have covered in last lecture, which was lecture number 10. In lecture 10, remember we discussed the difference between obligation, responsibility and responsiveness. And we said that social obligation is to qualify or to abide the minimum requirements which are laid down by the legal or economic authorities which are within your industry. But when an organization goes beyond its obligation and start involving its employees in building a culture which is more towards understanding of social needs, then we say that the organization is becoming socially responsible. And then if the same organization takes some practical steps and involve itself in doing something for the society, then we say that the organization has now become socially responsive. And then remember we discussed in detail what is social responsibility. We discussed the economic view, we also discussed the socio-economic view, and we said that it's not only about getting profit, it's also about getting and giving something back to the society, and we term that as a socio-economic view. And then in the last part of the lecture number 10, we discussed the greening of management, and we discussed that it's a light green towards a dark green approach, where an industry tends to become involved actively in actual practical steps, and that is called the greening of management, where the management tends to show a certain concern for the protection of environment at large. So let's see what we are going to discuss in today's lecture. In today's lecture, we will be discussing the second half of the chapter number 5, which is about ethics, and we'll be starting by discussing what is managerial ethics all about, what is moral development, what are the different factors which affect the employee ethics and in detail, and then finally we'll be concluding this lecture by discussing the ethics in international context, that how internationally different principles are there or prevalent, which defines what are the ethics which should be there in any organization. So remember, we are currently discussing chapter number 5. The first part was about social responsibility, which we have covered in lecture number 10, and today in lecture number 11 we will be discussing the second half of this chapter, which is about managerial ethics. So let's start. What is about managerial ethics? You see, whenever we talk about managerial ethics, it means the ethics which are to be imparted, which are to be shown by a manager. So those things which are acceptable by the organization and for the society, we call those actions or understandings or thinking as ethical. So वो काम जो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे समझे जाते हैं, या वो काम जो सोसाइटी अच्छा समझती है, उसको हम एथिकल काम कहते हैं, यानी एथिक्स के हम उसको एक पॉजिटिव जेस्चर कहते हैं. बट अगर कोई मैनेजर जो है कोई ऐसा काम करे जिसको ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं समझती या सोसाइटी अच्छा नहीं समझती, तो फिर हम कहेंगे दैट द मैनेजर है इज़ इन्वॉल्व्ड इन सम अनएथिकल प्रैक्टिसेस और अनएथिकल टास्क्स. सो एथिक्स क्या है? एथिक्स को हमने डिफाइन किया है एज प्रिंसिपल्स
values and beliefs that define what is right and wrong in terms of behavior. यानी कि वो प्रिंसिपल्स, वो असूल और वो बिलीव्स, वो थिंकिंग कि जो ये डिफ़ाइन करे कि क्या सही है और क्या गलत है, और अगर कोई मैं ऐसा काम करूं जो कि गलत हो तो मेरा जो बिहेवियर होगा वो अनएथिकल होगा, और अगर मैं कोई ऐसा काम करूं जो अच्छा हो, सही हो, तो फिर मेरा जो बिहेवियर होगा वो एथिकल बिहेवियर होगा। तो एथिक्स क्या है? एथिक्स इज़ अ काइंड ऑफ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप जिन चीज़ों को अच्छा समझते हो, जो चीज़ अच्छी हैं फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर सोसाइटी, तो हम उसको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा ही समझेंगे और उसको अच्छा कहेंगे। बट अगर कोई मैनेजर ऐसे काम करे जो सही ना हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या सोसाइटी के लिए, तो फिर हम कहेंगे कि मैनेजर का जो बिहेवियर है वो अनएथिकल है। टू डू व्हाट इज़ राइट इज़ एथिकल, टू डू समथिंग विच इज़ रॉन्ग इज़ unethical. Now, the next slide is showing you what are the factors which determine that the behavior of a manager is ethical or unethical. You see, it all starts from an ethical dilemma. Dilemma means a situation where the manager itself is not able to define or segregate कि मेरे कौन से स्टेप्स जो हैं वो लोगों को पसंद आएंगे, और हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टेप्स मैं लूँ जो कि लोगों को ना पसंद आएँ। सो डायलेमा है। डायलेमा का मतलब एक सिचुएशन है कि जहाँ पे मैनेजर के लिए ये डिफ़ाइन करना डिफ़िकल्ट हो रहा है कि मेरे इस स्टेप से लोग खुश होंगे या नाराज़ होंगे, यानी कि मैं कोई ऐसा स्टेप तो नहीं ले रहा जो अनएथिकल है और एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल नहीं है। सो जब एक डायलेमा आ जाता है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि वेदर द स्टेप्स और द डिसीजन आई एम टेकिंग इज़ एथिकल और नॉट, तो फिर वो मॉरल डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस को की तरफ रेफ़र करता है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि मॉरल डेवलपमेंट जो होती है वो टोटली एक इंटरनल प्रोसेस है, उसको किसी हद तक इफ़ेक्ट किया जा सकता है, लेकिन आप किसी की मॉरल वैल्यूज़ को ओवरनाइटली चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस के जो एक बच्चा जैसे जैसे एज वाइज ग्रो करता है, जैसे जैसे उसकी लर्निंग होती है, जैसे वो लोगों से मिलता है, जिस किस्म की वो एजुकेशन लेता है, जिस किस्म की वो सोसाइटी या कल्चर में उसका ग्रोथ हो या ग्रो अप होता है, तो वो चीज़ें उसकी मॉरल वैल्यूज़ को शेप देती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी मैनेजर के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको किसी हद तक तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट उसको चेंज नहीं कर सकते। सो व्हेनेवर देयर इज़ अ डायलेमा कि मैनेजर को ये डिटरमिन करना पड़े कि द स्टेप्स विच ही और शी इज़ टेकिंग इज़ एथिकल और अनएथिकल, तो वो सबसे पहले रेफ़र करता है अपनी मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस की तरफ, और वो अपनी डेफिनेशन पहले ढूंढता है कि मेरे नज़दीक ये प्रोसेस जो है या ये जो डिसीजन है ये एथिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद आप देखते हैं स्क्रीन पे, तो एक बैकग्राउंड में एक सर्कल पे ब्राउन कलर के लिखा हुआ है मॉडरेटर्स, और 4 मॉडरेटर्स हैं जो इस सिचुएशन को इफेक्ट कर रहे हैं। मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर इज़ अ सर्टेन कंपोनेंट जो किसी प्रोसेस को, किसी रिलेशनशिप को डायरेक्शन देता है, यानी इट कुड बी इट टर्न्स दैट रिलेशनशिप इनटू अ पॉजिटिव रिलेशनशिप और अ नेगेटिव रिलेशनशिप। अब थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। मॉरल डेवलपमेंट एक साइड पे है और दूसरा उसका जो एंड पे आपको चीज़ नज़र आ रही है वो एथिकल या अनएथिकल बिहेवियर है। कि जब एक एथिकल डायलेमा क्रिएट होगा, जब मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका जो डिसीजन है वो एथिकल है या अनएथिकल है, तो वो अपनी डेफिनेशन के मुताबिक, अपने मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस के मुताबिक उसका कोई आंसर ढूंढेगा, और उसके बाद जो वो डिसीजन लेगा वो या तो एथिकल बिहेवियर होगा या अनएथिकल बिहेवियर होगा।
बट इस पूरे प्रोसेस पे कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होंगी। यानी जब भी आप कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें आप ये देखने चाह रहे हैं कि ये एथिकल है या अनएथिकल है, तो उस वक़्त कुछ चीज़ें उसकी इंटेंसिटी को, उसकी रिलेशनशिप को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रही होंगी। सो जब भी एक क्वेश्चन होगा, एथिकल डायलेमा होगा, मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि मेरा कोई एक्शन एथिकल है या अनएथिकल है, तो वो एक प्रोसेस से गुजरेगा जिसका एंड रिजल्ट क्या है कि वो जो डिसीजन लेगा वो या तो एथिकल होगा या अनएथिकल कंसिडर होगा। बट इस पूरे प्रोसेस पे 4 चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं जो कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही हैं। दीज आर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अपने बिलीव्स या वैल्यूज़, इशू इंटेंसिटी, कि वो इशू जो है, जो प्रॉब्लम है जिस पे वो डिसीजन ले रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। और इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे, इसमें कोई एक चीज़ नहीं, रादर 5-6 चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। और फिर हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स क्या हैं और वो इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। और फिर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा जो कि इस पूरे प्रोसेस को भी इफ़ेक्ट कर रहा होगा। सो इन शॉर्ट ये डायग्राम आपको ये बता रही है कि जब भी किसी मैनेजर को कोई डिसीजन लेना है और वो ये देख रहा है कि इट्स एन एथिकल और अनएथिकल डिसीजन, तो और वो जो भी उस प्रोसेस से गुजरेगा, उस प्रोसेस में ये 3 या 4 चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। और उससे गुजरने के बाद जब भी कोई डिसीजन लेगा तो वो एथिकल बिहेवियर होगा या अनएथिकल बिहेवियर कंसिडर होगा। सो द फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉरल डेवलपमेंट। हमने कहा एथिकल डायलेमा है कि एक सिचुएशन आ गई है जहां मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि वो ये डिसीजन ले या ना ले। और क्वेश्चन ये है कि अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो एथिकल या अनएथिकल कंसिडर होगा, तो फौरी तौर पे वो रेफ़र करता है अपने मॉरल डेवलपमेंट की तरफ। यानी उसकी डेवलपमेंट जिस तरह मॉरली उसके लिए जो वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले देखता है कि उसके नज़दीक ये जो प्रॉब्लम है ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इज़ इट एन एथिकल इशू, इज़ इट एथिकल इशू, तो उसके वो मॉरल डेवलपमेंट की तरफ जाता है, की तरफ रेफ़र करता है। बट मॉरल डेवलपमेंट मैंने जैसे शुरू में कहा, इट्स नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस। ये ओवर द लाइफ ऑफ मैनेजर उसकी मॉरल वैल्यूज़ शेप होती हैं। और थोड़ा सा मैं इसकी तरफ अभी आऊँगा डिटेल में। सो लेट्स सी कि मॉरल डेवलपमेंट है क्या। इट इज़ अ मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस, यानी कि वो किस हद तक अपनी मॉरल वैल्यूज़ को, अपनी थिंकिंग को कंसिडर करता है, इम्पोर्टेंस देता है, और बाहर के इन्फ्लुएंसेस को, बाहर की जो वेरिएबल्स हैं, बाहर की जो डेफिनेशंस हैं, बाहर के जो मैसेजेस हैं, बाहर की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उससे ला ताल्लुक़ रहता है, सेपरेट रहता है। यानी कि किस हद तक एक मैनेजर जो है वो अपनी थिंकिंग को प्रेफरेंस देता है अगेंस्ट दी ओवरऑल वैल्यूज़। और हो सकता है कि एक मैनेजर की जो अपनी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बेहतर हो। फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर जो है वो ये समझता है कि कमीशन लेना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी बिड के अगेंस्ट अनएथिकल है, और ये उसकी अपनी मॉरल वैल्यूज़ की वजह से है। लेकिन हो सकता है कि सोसाइटी के कुछ लोग जो बाहर हैं वो शायद ये समझते हो कि कमीशन लेना जो है वो इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। तो अब आइसोलेशन में रहते हुए उसने उस डिसीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उस करैक्टरिस्टिक्स को या मैसेजेस को इम्पोर्टेंस नहीं दी जो बाहर से उसको आ रहे हैं। उसने कहा नहीं, मेरा जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो ये कहती हैं कि ऐसा करना जो है वो गलत है। सो अब ये जो डिसीजन है ये उसने लिया है, बट ये जो डिसीजन उसने अभी लिया है उस तक पहुंचने के लिए उसने ये कुछ अच्छी बातें अपनी ज़िंदगी में सीखी होंगी या उसको किसी ने सिखाई होंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है, ये सही होता है। तो वो मॉरल वैल्यूज़ डेवलप हुई हैं ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये जो डेवलपमेंट है मॉरल वैल्यूज़ की, ये 3 स्टेप्स में या 3 लेवल्स में होती हैं। पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, फिर है कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा है प्रिंसिपल्ड लेवल। अब तीनों में मैं डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट कर देता हूँ। देखें, प्री कन्वेंशनल लेवल ये है, इज़ अ फर्स्ट स्टेप जिसमें
एक मैनेजर जो है उसके नज़दीक जो सही या गलत की डेफिनेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ सज़ा या से बचने का एक मेथड है। यानी अगर मुझे सज़ा मिल रही है और मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसको अच्छा कहूँगा तो मुझे सज़ा नहीं मिलेगी, तो मैं कहूँगा हाँ जी ये चीज़ अच्छी है। अब किसी हद तक आप समझ रहे हैं कि ये बिहेवियर जनरली जो है वो यंग एज पे जो छोटे बच्चे होते हैं या ग्रोन अप्स बहुत होते हैं वो ये काम करते हैं कि मैं अगर किसी बच्चे को कहूँ कि भाई ये तुम करोगे तो मैं तुम्हें शाबाश दूंगा, तो वो कहेगा अच्छा मुझे शाबाश मिलेगी। इवन इफ़ दैट थिंग इज़ गुड और बैड, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन वो सज़ा से बचने के लिए या डांट से बचने के लिए वो अच्छे काम करेगा। तो उस वक़्त मॉरल वैल्यू जो है वो बेसिकली सज़ा से बचने के लिए या डांट से बचने की हद तक है, उससे ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो कोई बाहर ओवरऑल लेवल पे नहीं देख रहा। प्री कन्वेंशनल लेवल ये है जिसमें जो शख्स है, जो पर्सन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो डेफिनेशन मॉरल वैल्यूज़ की दे रहा है वो उसके नज़दीक राइट और रॉन्ग की हद तक है। और राइट और रॉन्ग किस वजह से कहता है वो, क्योंकि वो बचना चाहता है पनिशमेंट से। फिर आ जाता है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल ये होता है कि जहाँ पे आप ग्रुप वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप कहते हैं कि मेरे नज़दीक ये चीज़ अच्छी है, मेरे नज़दीक ये चीज़ बुरी है, क्योंकि मेरे साथ जो लोग हैं, मेरे दोस्त जो हैं, मेरे घर वाले जो हैं, वो इसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्री कन्वेंशनल लेवल पे हमने बात की कि सिर्फ वो इंडिविजुअली देख रहा है कि ये गलत या सही है, क्योंकि मैं बच जाऊंगा, मैं डांट से बच जाऊंगा, मैं मार से बच जाऊंगा, पनिशमेंट से बच जाऊंगा। बट देन जब आप थोड़ा सा ग्रो अप और होते हैं और आप एक यंग पर्सन या एक कह लें कि एक ऐसे इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं कि जो राउंड अबाउट 18 ईयर्स और सो है। सो मैं कोई फिगर तो नहीं डिफाइन करा, बट कहने का मकसद ये है कि एक इंडिविजुअल जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो गया है। सो चाइल्ड हैज़ मूव टुवर्ड्स एडल्ट स्टेज। तो अब जो है वो एक लेवल ऑफ थोड़ा सा मॉरल वैल्यूज़ जो है उसकी वो जो है वो डेवलप हो चुकी हैं। और अब जो वो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि मैं सिर्फ अपनी सज़ा की पनिशमेंट की से बचने की बात नहीं कर रहा, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ग्रुप है जिनमें मैं बैठता हूँ, जिसमें मैं रहता हूँ, वो ये चीज़ अच्छी और बुरी समझते हैं। अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि इस लेवल पे भी हो सकता है कि मैं जिस ग्रुप से अपने आप को एसोसिएट कर रहा हूँ या जिस ग्रुप के मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, वो जो बात कह रहे हैं वो ग्रुप के हिसाब से तो शायद एक थिंकिंग अपनी शो कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वो गलत ही कह रहे हो। ये कुछ ऐसे है कि एक अडल्ट है जो किसी ऐसी कम्युनिटी में रह रहा है जहाँ पे लोग जो उसके दोस्त यार हैं वो चोरी वगैरह करते हैं, तो वो ये समझता है कि चोरी करने से मेरा जो है वो खर्चे निकल रहे हैं, तो ये काम करना एक अच्छा काम है, ये एक रोज़गार का तरीका है। सो ग्रुप तो ये कह रहा है कि रोज़गार का तरीका है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये काम गलत है और गलत ही है। तो फिर आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेटर ऑन जब आप मैच्योरिटी में आ जाते हैं, मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं या उससे पास ऑन हो रहे होते हैं, देन यू एंटर इनटू द प्रिंसिपल्ड लेवल। और प्रिंसिपल्ड लेवल क्या है कि जिसमें आप ये कहते हैं कि नहीं, बेशक मेरा ग्रुप जो मर्जी कह रहा है, अगर ये मेरा ग्रुप गलत कह रहा है तो मैं अपने ग्रुप के साथ नहीं चल सकता। इफ द थिंग इज रॉन्ग देन इट्स रॉन्ग। आप प्रिंसिपल की बात करते हैं उस वक्त। सो देन आप थर्ड लेवल पे आ गए। सो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। प्री कन्वेंशनल लेवल क्या है कि जिसमें द मॉरल वैल्यूज आर जस्ट डेवलपिंग, और उस वक्त आप किसी चीज़ को एथिकल या अनएथिकल इस वजह से कह रहे होते हो बिकॉज यू वांट टू सेव योर साइड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट। जैसे बच्चे स्कूल में झूठ बोल देते हैं और ऐसा कर देते हैं या सच को
सो उस वक्त उनका बेसिक एम क्या होता है, कोई बहाना मार देना कि जी मैंने होमवर्क नहीं किया, ये हो गया था जी, अब पता नहीं वो हुआ था कि नहीं हुआ था, बट वो पनिशमेंट से तो बच गए। सो दैट इज़ अ प्री कन्वेंशनल लेवल। फिर एक एडल्ट लेवल आता है जहाँ पे आप कन्वेंशनली थिंक कर रहे होते हो और आप बात करते हैं कि जी मेरे नज़दीक ये चीज़ अच्छी है क्योंकि मेरे घर वाले ये कहते हैं, या मेरे दोस्त चूँकि ये बात कहते हैं तो वो अच्छी चीज़ है। अब मैंने जैसे एग्जांपल दी कि एक बच्चा जो है वो लेट से उसके दोस्त यार अच्छे नहीं हैं, वो चोरी भी कर लेते हैं, तो वो ये कहता है कि जी चोरी इस वजह से कर लेते हैं क्योंकि हमारे खर्चे नहीं चलते, हमें पैसे मिल जाते हैं। उसके ग्रुप के हिसाब से तो वो डेफिनेशन ठीक है, बट प्रिंसिपली वो डेफिनेशन गलत है क्योंकि चोरी तो चोरी है। तो जब वो थर्ड लेवल पे आएगा, जब मेच्योरिटी से ऊपर आएगा, तो उस वक्त वो कहेगा कि नहीं, प्रिंसिपली इफ़ दैट इज़ राइट तो राइट है, अगर प्रिंसिपली ये रॉन्ग है तो रॉन्ग है। बेशक जिनके साथ मैं रहता हूँ वो मुझे जो मर्ज़ी कहे, लेकिन अगर ये प्रिंसिपली या कानूनन या अखलाकन गलत है तो ये गलत है। सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब यही वो 3 लेवल्स यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं। वी हैव अ प्री कन्वेंशन लेवल, उस पे स्टेज 1 और 2 क्या है कि फर्स्ट स्टेज क्या है, स्टिकिंग टू रूल्स टू अवॉइड फिजिकल पनिशमेंट, कि आप मार से बचने के लिए, जैसे बच्चे होते हैं कि स्कूल में टीचर से डांट ना पड़ जाए, मार ना पड़ जाए। सो द आइडिया इज टू, रूल्स को आप इस वजह से अवॉइड कर रहे होते हैं कि भाई अगर हमने रूल तोड़ा तो मार पड़ेगी। दैट इज द फर्स्ट थिंग, विल गो स्टार्ट में। Then the next stage is you start following rules only when doing so is in your immediate interest। आप थोड़ा सा मैच्योर, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई मैं रूल्स इस वजह से नहीं फॉलो कर रहा कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मैं रूल्स इस वजह से फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी बेनिफिट के लिए है, मुझे होमवर्क कर लेना चाहिए क्योंकि इसका मुझे फ़ायदा होगा। सो थोड़ा सा मैच्योरिटी अब आपकी आ रही है, आप पनिशमेंट क्यों नहीं देख रहे, आप ये देख रहे हैं कि ओवरऑल आपके बेनिफिट में क्या है। बट रिमेंबर, प्री कन्वेंशनल लेवल इज ऑल अबाउट योर सेल्फ। द नेक्स्ट स्टेज इज कन्वेंशनल लेवल। Here you think in terms of the reference group, your family, your friends. So living up to what is expected by people close to you. अब आप वो काम करना शुरू कर देते हैं कि जो आपके घर वाले या आपके दोस्त आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Maintaining conventional order by fulfilling obligations to which you have agreed. अब आप एक conventionally एक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, वैल्यूज़ में बैलेंस लेके आ रहे हैं, अपने मिलने वालों से एक बिहेवियर, आपका बैलेंस बिहेवियर आ रहा है। और अब आपकी वैल्यूज़, लोग अगर आपके मतलब बात करेंगे तो वो दे के नाउ से विद श्योरिटी कि अगर ये बात होगी तो उसका जवाब ये होगा। और अभी हम थोड़ा सा आगे एक स्लाइड पे देखेंगे कि ये जनरली लेवल 4 कहलाता है, जो कि मैच्योर लोगों का बिहेवियर होता है। अब इससे ऊपर जब हम मूव करेंगे तो उस वक्त अब हम विल बी मूविंग टू लेवल 5 और 6 जो कि प्रिंसिपल्ड है। यानी अब आप ग्रुप से बाहर की सोच रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं, इफ दैट इज प्रिंसिपली गुड और राइट तो राइट है, अगर प्रिंसिपली ये रॉन्ग है तो रॉन्ग है, मुझे जो मर्जी कोई कहता रहे। सो लेट्स टॉक अबाउट द लेवल 5। इट सेज वैल्यूइंग राइट्स ऑफ अदर्स एंड अपहोल्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड राइट्स रिगार्डलेस ऑफ द मेजॉरिटीज ओपिनियन, कि ओपिनियन जो मर्जी हो, अगर मेरे नज़दीक ये चीज़ सही है तो ये सही है। बट नाउ यू आर प्रिंसिपली यू आर वेरी मच श्योर। और यही वजह है कि जो मैंने शुरू में कहा कि जब आप एक एथिकल डायलेमा आता है कि मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो एथिकल है या अनएथिकल है, तो सबसे पहले वो किसको रेफर करता है, मॉरल डेवलपमेंट को। यानी अपनी डेफिनेशन को देखता है कि मेरे नज़दीक ये सही है या गलत है। फिर बाकी देखेगा कि सोसाइटी में उसका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या उसको किस तरह लेगी, या उसके कुलीग्स इस डिसीजन को कैसे लेंगे, स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स कैसे लेंगे, वो बात की बात है। पहले हमेशा मैनेजर जो है वो अपनी डेफिनेशन ढूंढता है कि मेरे नज़दीक जो मेरा डिसीजन है वो एथिकली करेक्ट है या रॉन्ग है, और उसके लिए ये मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस उस पर इफेक्ट कर रहे होते हैं। सो मैच्योरिटी से ऊपर अगर हैं आप, लेवल 4 या अबव हैं, तो फिर आप प्रिंसिपल्स पे डिसीजन कर रहे होते हैं। लेवल 4 से नीचे हैं तो उस वक्त आपका जो डिसीजन है वो कोई इतना सस्टेनेबल डिसीजन नहीं है। वो इट मे डिफ़र कि आपको थोड़ा सा प्रेशर आ गया घर वालों का तो आपने डिसीजन चेंज कर दिया, फिर थोड़ा सा दोस्तों का प्रेशर आ गया फिर डिसीजन चेंज कर दिया। सो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ मैच्योर डिसीजन विच यू आर टेकिंग। नाउ मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड रिसर्च कंक्लूजन्स क्या हैं?
Now this shows that people proceed through stages of moral development sequentially. ये हमेशा एक sequential process है, ये नहीं हो सकता कि आप प्री कन्वेंशनल लेवल से जंप करें और जो है प्रिंसिपल लेवल पे चले जाएं, नहीं, ये एज के साथ साथ ये आपकी डेवलपमेंट होती है, इट्स अ डेवलपमेंट. सो इट डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स टाइम एंड पासिस थ्रू नंबर ऑफ स्टेजेस, और स्टेज 1 से लेके ऑनवर्ड है, स्टेज 6 तक आप मूव करेंगे. सो इट्स अ सीक्वेंशियल प्रोसेस. हाँ, बट देयर इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लोगों की थिंकिंग लाजमी नहीं है कि एग्जैक्टली अगर वो एक अडल्ट है तो उसकी लेवल जो है वो 3 पे होगा, मैच्योर है तो वो लेवल 4 पे होगा, ऐसा होना चाहिए. बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिकॉज देयर इज़ नो गारंटी कि वो कोई शख्स जो है वो मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस को कंटिन्यू रखेगा. अब ये साइकोलॉजिकली प्रूफ हो चुका है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रेफरेंस ग्रुप, और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है एक टीचर की. अगर आपका जो टीचर है, जो आपका इंस्ट्रक्टर है, डे 1 क्लास 1, अगर वो डे 1 से आपको अच्छी बातें और मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ बताएगा तो वो चीज़ें आपके जहन में बैठती जाएंगी. लेकिन अगर कोई इस एजुकेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरा, फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन, वो अगर नहीं गुजरा तो फिर उसकी मॉरल डेवलपमेंट के किसी पर्टिकुलर स्टेज पे होने की कोई गारंटी नहीं है. एज एंड एजुकेशन ये 2 मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं, और फिर तीसरा जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है वो आपका रेफरेंस ग्रुप होता है, जो आपका क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स हैं या क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं. दे ऑलवेज थिंक. सो एक बड़ा मशहूर वो जुमला भी आ जाता है कि अ पर्सन इज़ नोन बाय हिज और हर फ्रेंड्स. सो एक अगर आपने किसी को देखना है कि बंदा कैसा है तो उसके फ्रेंड्स को देखो. So that is why we say, but that is again the point is that the process will move from one stage to another, but there is no guarantee about it. And most of the adults are always in stage 4, meaning that they are good corporate citizens. Why? Because in stage 4 हमने देखा था that a person can now discuss clearly कि ये जो है ये मेरे रेफरेंस ग्रुप के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा और मेरे ग्रुप के लोग क्या कहेंगे. सो जनरली मैच्योर बंदा जो होता है वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसका इम्पैक्ट देखता है कि मेरे नज़दीक के लोगों पे इसका क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या वो फील करेंगे. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ आफ्टर डिफाइनिंग कि मॉरल डेवलपमेंट क्या है, एथिकल डायलेमा आया, क्वेश्चन रेज हुआ मैनेजर के जहन में कि मुझे जो डिसीजन लेना है वो एथिकल है या अनएथिकल है. सबसे पहले उसने रेफ़र किया मॉरल डेवलपमेंट को, जिसको हमने अभी डिस्कस किया. उसने अपनी डेफिनेशन को, और जो कि डिपेंडेंट है किस पे, स्टेजेस के ऊपर, कि वो प्री कन्वेंशनल पे है, कन्वेंशनल पे है या प्रिंसिपल पे है, तो वो उस लेवल्स की बेसिस के ऊपर कोई अपनी डेफिनेशन डिफाइन करेगा. बट स्टिल द मैनेजर नीड्स टू अंडरस्टैंड अदर मॉडरेटर्स. मैंने मॉडरेटर डायग्राम में भी शो किया हुआ है. मॉडरेटर का मतलब होता है वो इफेक्ट, वो कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट या जो उस रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहे हो, यानी डिसीजन रिजल्टिंग इन अनएथिकल और एथिकल बिहेवियर इज बीइंग अफेक्टेड बाय दीज फैक्टर्स. और वो 4 फैक्टर्स अभी हमने इनिशियली देखे थे, अब 1 बाय 1 अब उनको डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा एक चीज़ और देख ले पहले कि जो स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैं वो किन चीज़ों से इफेक्ट हो रही है. वही मॉडरेटर्स की बात ही हो रही है कि वो 4 मॉडरेटर्स कौन कौन से हैं. इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें एक शख्स के अपने बिलीफ और वैल्यूज़ वो क्या है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, इस पे हम बात करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, एंड फाइनली द इंटेंसिटी ऑफ द एथिकल इशू. ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, वो जो डिसीजन वो ले रहा है रिगार्डिंग डिफाइनिंग कि एथिकल या अनएथिकल है कि नहीं है, उन पे 4 ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी. सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. वैल्यूज़ एंड पर्सनालिटी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. वैल्यूज़ क्या है, बेसिक कन्विक्शंस अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, कि मेरी अपनी क्या डेफिनेशन है, मेरी अपनी क्या इसके बारे में थिंकिंग है कि क्या व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, मैं क्या समझता हूँ, व्हाट आई वैल्यू इज़. तो मेरे नज़दीक क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या वैल्यू रखती है, दैट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट. देन एड्स
it to the other component which is personality. अब पर्सनैलिटी को मैंने यहाँ पे दो चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है. वन इज कॉल्ड ईगो स्ट्रेंथ, द अदर वन इज कॉल्ड लोकस ऑफ कंट्रोल. ईगो क्या है? ईगो का मतलब है मैं, सिंपल वर्ड्स में, दैट इफ समथिंग सूट्स मी एंड आई बिलीव दैट इट्स a true representation of what I am, तो मेरी ये ईगो के, आप कहते हैं ना कि यार ये बात ना करो, it hurts my ego. I cannot ask someone for favor because it hurts my ego. यानी मैं किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता क्योंकि ये मेरे अपना जो बिलीफ है, जो मेरी ईगो है, ठीक है, उसके खिलाफ है. सो ईगो स्ट्रेंथ क्या है? अ पर्सनैलिटी मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सनस कन्विक्शन, कि मेरी सोच के खिलाफ है या मेरी जो बिलीव्स है उसके खिलाफ है. सो ईगो स्ट्रेंथ एक पहला मेजर होता है पर्सनैलिटी का. अगर आप किसी बंदे से कोई चीज़ पूछो और वो कहे कि नहीं जी मैं तो ये काम नहीं कर सकता, ये मेरी खुद ही के खिलाफ है या मेरे नेचर के खिलाफ है या मेरी ईगो के खिलाफ है, तो आप कहोगे कि यार इसकी ईगो स्ट्रेंथ तो बहुत हाई है. और अगर आप कोई उसको गलत काम करने के लिए कहो और वो उसमें आपका साथी बन जाए और आप हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दे, तो फिर आप कहोगे कि हो सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ईगो स्ट्रेंथ लो है. सो ईगो स्ट्रेंथ हाई क्या है कि अगर आपने उसको गलत काम करने के लिए कहा और वो कहे कि नहीं इट्स रॉन्ग, आई कैन नॉट डू इट, तो आप कहोगे उसकी ईगो स्ट्रेंथ हाई है. और अगर आप उसको थोड़ी बहुत बातें करते हो और थोड़ी देर बाद वो आपके झांसे में आ जाता है और आपके साथ मिल जाता है, फिर उसकी ईगो स्ट्रेंथ लो हुई, क्योंकि इनिशियली तो वो किसी प्रिंसिपल पे बिलीव करता था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आपके साथ आप जैसा हो गया है. सो ईगो स्ट्रेंथ क्या है कि एक बंदा अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहे, दैट इज द ईगो स्ट्रेंथ. देन कम्स द लोकस ऑफ कंट्रोल. इट हैज़ अ वेरी वाइड एप्लीकेशन, स्पेशली जब आप कुछ कोर्सेज पढ़ेंगे सच एज कंज्यूमर बिहेवियर, तो वहाँ पे लोकस ऑफ कंट्रोल की इन्वॉल्वमेंट आएगी. और वहाँ पे आपको थोड़ा सा हम इनिशियली मैं आपको बता देता हूँ कि इट हैज़ टू कंपोनेंट्स. वन इज कॉल्ड द इनर लोकस ऑफ कंट्रोल which is called internal locus also, and then we have exterior locus of control also called external locus of control. So what is a locus of control? A personality attribute that measures the degree to which people believe they control their own life. जनरली आपने देखा होगा, आप कहते हैं कि यार ये कैसे हुआ, आपने कहा यार पता नहीं बट किस्मत में ऐसे था. आपने कहा गाड़ी आप चला रहे थे और गाड़ी कहीं आपने मार दी, गाड़ी आपने ही मारी है, एक्सीडेंट आपने ही किया है, आप कहते हैं यार किस्मत में था. ठीक है, वी बिलीव इट, राइट. पर आप कहते हैं कि जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत में यही था और होना ही था, और मैं तो अपनी किस्मत का मालिक हूँ ही नहीं. ठीक है. सो वी हैव नाउ टू थिंग्स टू बी डिस्कस्ड. अगर कोई मैनेजर, थिंक अबाउट मैनेजर्स राइट नाउ. इफ अ मैनेजर बिलीव्स or a person believe that whatever decisions he or she has taken and whatever is happening is because of not destiny, rather I am the overall control of my destiny. यानी मैं अपनी किस्मत का खुद मालिक हूँ, यानी जैसा मैं काम करूँगा मेरी किस्मत वैसे ही मेरे लिए बनेगी. मैं मेहनत करूँगा तो मेरी किस्मत और चमकेगी, अगर मैं नहीं काम करूंगा तो मेरी किस्मत फिर जारी बात है कुछ कम हो जाएगी. सो दैट इज कॉल्ड इंटरनल लोकस. इंटरनल मीन्स द पावर इज विदन, यानी मैं अपनी जो किस्मत है उसका कंट्रोल करने की पावर मेरे पास है. आई एम द वन. अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं ये चीज हासिल कर लूंगा. बट ऑन द अदर साइड देयर विल बी सम पीपल, और जो आप जिंदगी में जिनसे मिलते रहते हैं, वो ये रादर ये कहते हुए आपको नजर आएंगे, तुम ये पढ़ क्यों नहीं रहे हो, पढ़ने का फायदा कोई नहीं है, मेरे तो नंबर ही नहीं आने. और भाई तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर आएंगे ना. सो जब आप ये समझने लग जाओ, जैसे यहाँ क्या कहा गया है, द बिलीव दैट वट एवर हैपन्स टू यू इज ड्यू टू लक और चांस. यार मेरी किस्मत होगी तो मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, किस्मत खराब हुई तो कम आ जाएंगे, कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं पढ़ा.
So there we have two personalities. Locus of control says that there are two personality. One is having internal locus, the one is external locus. Internal locus means कि जो लोग ये believe करते हैं कि they can change their destiny. If they will work hard, they can change their destiny. अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और उसकी पावर उनके पास है. मेहनत करेंगे, they can change it. और जो दूसरी कैटेगरी है वो ये कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं है मेहनत का, डेस्टिनी तो हमारी है ही नहीं, डेस्टिनी तो कंट्रोल्ड है बाय एनी अदर फोर्स, और जो किस्मत में मिल जाएगा, नहीं तो ठीक है बैठे रहो बस. सो दैट इज़ द वे द डिसीजंस आर. सो पहला जो मेन कंपोनेंट है वो है आपका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर एक मैनेजर जो है वो ये समझता है कि उसके जो वैल्यूज़ हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी है, ऑब्वियसली वैल्यूज़ और पर्सनैलिटी जो है उस मैनेजर की, वो उस चीज़ को एथिकली या अनएथिकली डिफाइन करने पे इफेक्ट करेगी. अगर उसके नज़दीक वो वैल्यू रखती है चीज़ और वो एथिकल है तो वो एथिकल ही उसको इनिशियली कंसिडर करेगा. अगर वो उसको अनएथिकल समझता है तो अनएथिकल ही उसको पहले डिफाइन करेगा, बाद में जो कुछ होता है वो भी हम देखेंगे. बट इनिशियली पर्सनैलिटी और वैल्यूज़ जो हैं, जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, वो इस रिलेशनशिप को, यानी ये डिसाइड करना कि समथिंग इज एथिकल और अनएथिकल, उसको सबसे पहले इफेक्ट करता है. देन कम्स द स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स, यानी वो वेरिएबल हमने जैसे शुरू में एक आध लेक्चर में कहा था कि वेरिएबल मीन्स समथिंग विच चेंजेस, राइट. सो वेरिएशन हो जिसमें वो वेरिएबल होता है. तो स्ट्रक्चरल वेरिएबल क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैकेनिज्म्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसकी जो वेरिएशन है वो किसी चीज़ को एथिकल और अनएथिकल बना देती है या बना सकती है. अब वो कैसे बनाती है, लेट्स हैव अ लुक एट द स्लाइड. ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म्स दैट गाइड एंड इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एथिक्स. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है, जो लोग अच्छा काम नहीं करते उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता बल्कि पनिशमेंट भी मिलती है, तो फिर तो ये है कि देयर इज अ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम. लेकिन अगर अप्रेजल सिस्टम प्रॉपर ना हो और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे भी उतना ही रिवॉर्ड मिल रहा है या इंक्रीमेंट मिल रही है, और जो बिल्कुल काम नहीं करते उनको भी वही इंक्रीमेंट मिल रही है, तो शायद उनको तो नहीं लेकिन मुझे एक डिस्पैरिटी क्रिएट होगी, मेरे में एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा और मैं कहूँगा कि यार मेरे साथ क्यों ऐसा है. यानी हम तो काम भी करते हैं, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. सो जब डिस्पैरिटी क्रिएट होती है, जब डिफरेंस क्रिएट होता है, जब बायसनेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एथिकल और अनएथिकल की डेफिनेशन जो होती है वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है. आप कहते हो कि मैं तो ये चीज़ मेहनत से करता हूँ, मैं तो एथिकली जो मुझे कहा गया वो करता हूँ, पूरा टाइम पे काम करता हूँ, बट व्हेन इट्स अबाउट अ रिवॉर्ड तो उस वक्त तो कोई एथिकली मेरे से फैसला नहीं करता, तो मैं क्यों ऐसा करूँ. सो कुछ चीज़ें फिर आप पे इफेक्ट करना शुरू हो जाती हैं. रिवॉर्ड एलोकेशन सिस्टम मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि इंक्रीमेंट है, आप कहते हो कि इंक्रीमेंट सिर्फ वो मिलनी चाहिए, और रूल भी यही है कि जो अच्छा काम करे उसको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर सबको मिलनी शुरू हो जाए इरिस्पेक्टिव कि अच्छा काम किया या नहीं किया है, तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जब उसने ही अपनी डेफिनेशन चेंज कर दी है एथिकल और अनएथिकल की, तो फिर बाकी चीज़ें भी इफेक्ट होंगी. एंड ओवरऑल बिहेवियर्स और मैनेजर्स, वो थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स में एक और कंपोनेंट है कि ओवरऑल मैनेजर जो है वो एथिकली किस चीज़ को बेहतर समझते हैं और किस चीज़ को नहीं बेहतर समझते हैं. देन कम्स अ थर्ड कंपोनेंट विच इज द ओवरऑल ब्लैंकेट, इट्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में पहली चीज़ है वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट. द नेक्स्ट थिंग इज द पर्पस ऑफ शेयर्ड वैल्यूज, और द थर्ड थिंग इज द बॉटम लाइन ऑन शेयर्ड कॉर्पोरेट वैल्यूज. सो अभी मैं वन बाय वन इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ. द फर्स्ट वन इज द वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट, दैट अ मैनेजर शुड टेक दैट डिसीजन which is according to the organizational values. So an approach to maintain an approach to managing in which managers establish and uphold an organizational shared values is called value based management. यानी जब मैनेजर जो है वो ऐसे काम करे, ऐसे डिसीजंस ले जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के मुताबिक हैं, तो फिर हम कहते हैं कि इट इज़ अबाउट वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट. सो सबसे पहले
ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में पहली चीज़ क्या आ रही है कि अनएथिकल और एथिकल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि क्या मैनेजर वही काम कर रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको अच्छा समझती है, और अगर बुरा समझती है तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मैनेजर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। शेयर्ड वैल्यूज का पर्पस क्या है? इट्स अबाउट गाइडिंग मैनेजरियल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन कुछ वैल्यूज क्यों डिफाइन करती है? ताकि मैनेजर्स उसके मुताबिक डिसीजन ले सकें। एम्प्लॉय बिहेवियर जो है वो इसके मुताबिक डेवलप हो सके, जो चीज़ अच्छी है बिहेवियर वाइज भी एम्प्लॉयज़ उसको शो करें। आपकी कोई मार्केटिंग की एफर्ट्स हैं वो भी उसी तरह डेवलप हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज सही हैं और वो इन्वॉल्व और वो मैनेजर्स भी उसके मुताबिक काम कर रहे हैं तो फिर एक टीम स्पिरिट होगी। और रिमेंबर, मैंने जैसे शुरू में कहा कि बट देयर इज वन थिंग कि हर इंडिविजुअल का वैल्यूज़ और ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, मैचअप होने चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि जिसको मैनेजर एथिकल समझता है वो एंड में अनएथिकल निकले, बिकॉज मैनेजर जिस चीज़ को अब एथिकल समझ रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ के मुताबिक है, और अगर अनएथिकल डिफाइन कर रहा है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ के मुताबिक अनएथिकल है। तो वो ये कह रहा है The bottom line on shared corporate values and organizations' values are reflected in the decision and actions of its employees. Bottom line क्या है? End result क्या है? The end result is कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर या वैल्यूज शेयर्ड हैं, डेवलप्ड है, एम्प्लॉयज़ भी उसके अंदर जो है वो उस ढल चुके हैं, उसके मुताबिक और अंडरस्टैंड करते हैं और डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो बॉटम लाइन ये होगी कि फिर जो कुछ डिसीजन या एक्शंस एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं वो एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के मुताबिक होगा। और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मैनेजर जो है वो कोई गलत डिसीजन ले ले, अनएथिकल डिसीजन ले ले। सो पहला हमने फैक्टर देखा इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा हमने देखा स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स, और तीसरा हमने देखा अभी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब रह जाता है इंटेंसिटी। अब इशू की इंटेंसिटी, अब मैंने कहा था जैसे शुरू में कि इशू इंटेंसिटी कोई एक चीज़ नहीं है, इसमें 3, 4 चीज़ें, 5 चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। अब वो 5 चीज़ें या 6 चीज़ें जो भी हैं वो आपकी स्लाइड पे आपको नज़र आ रही हैं। लेट्स हैव अ लुक एट देम। पहला है कंसेंसस ऑफ रॉन्ग। कंसेंसस ऑफ रॉन्ग का मतलब यह है कि मैनेजर सबसे पहले ये देखता है कि जितने लोगों से मैंने बात की है कंसेंसस क्या है, ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, ये चीज़ सही है या गलत है। तो सबसे पहले वो अब थोड़ा सा वो मैनेजर जो है वो अपने आसपास के लोगों से, रेफरेंस ग्रुप से कुछ इनपुट्स ले रहा है और कंसेंसस देख रहा है कि कंसेंसस क्या है, कि ये रॉन्ग है या राइट है। फिर हम अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेक्स्ट आइटम जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म, कि क्या चांसेस हैं कि मेरे किसी डिसीजन से नुकसान होगा, तो नुकसान के कितने चांसेस हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, और कितने परसेंट लोग इससे इफेक्ट होंगे। सो एज सच प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरा डिसीजन जो है वो गलत हो जाए या उसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इशू की इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। इमीडिएसी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कि इमीडिएटली क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आएंगे कि नहीं नज़र आएंगे। हो सकता है कई दफ़ा आप ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, प्रोडक्ट भी बन गई, डेवलप भी हो गई, मार्केट में भी चली गई, कुछ लोगों ने इस्तेमाल भी करनी शुरू कर दी, और कुछ 8 महीने या साल या 1.5 साल बाद, 2 साल बाद उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको नज़र आने शुरू होते हैं। या मे भी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रूव ये होता है कि जो मैनेजर ने डिसीजन लिया था वो प्रोडक्ट मार्केट में अनएथिकल कंसिडर हुई और वो रिजेक्ट हो गई। लोगों ने कहा कि ये तो प्रोडक्ट ही ठीक नहीं थी, इसमें ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ है और ये हमारे कल्चर के मुताबिक नहीं है या ये है, सो वो रिजेक्ट होगी। हो सकता है वो पूरे 2 साल की वर्किंग के बाद जाके लॉन्च हुई हो और वो जाके रिजेक्ट हो गई। सो नॉर्मली तीसरा जो चीज़ मैनेजर देखता है इशू इंटेंसिटी में वो ये है कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस इमीडिएटली नज़र आएंगे कि नहीं नज़र आएंगे। प्रॉक्सिमिटी टू विक्टिम्स, कि अगर हम देखते हैं तो जो पोटेंशियल जिन लोगों पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है वो इस इशू की वजह से जिस पे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है वो इसके कितने करीब या दूर है। अब मैं थोड़ा सा इसकी एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ।
लेट्स से आप एक मोटरवे बना रहे हैं, एक रोड बना रहे हैं जहाँ पे एक ऐसा इलाका है जहाँ पे फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट को काटना पड़ रहा है आपको। अब फॉरेस्ट को काटे बगैर रोड नहीं बन रही वहाँ पे। अब वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो भी सेटल्ड हैं। अब पता ये चल रहा है कि आपने डिसीजन तो ले लिया कि रोड हमने बनानी है और रोड आपने बना दी, उसकी वजह से क्या हुआ कि आधा गांव जो है वो एक साइड पे रह गया, आधा रोड के साइड पे आ गया, बीच में आपने मोटरवे क्रिएट कर दी है। अब इस वक्त जो विक्टिम्स हैं इस डिसीजन के वो इमीडिएटली सराउंडिंग के अंदर हैं, या आपने एक हाई टेंशन वायर्स गुजार रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अब गुजारने के लिए गांव पहले से बहुत पुराना गांव है, पुराना सेटअप है, आपने अब कुछ नज़र नहीं आया, आपने कहा चलो ऊंचे टावर्स लगाओ और इसके ऊपर से गुजार दो। मे बी उसका कोई ना कोई इफेक्ट मे बी रिसर्च में प्रूव हो जाए हो, और विक्टिम्स जो है इमीडिएटली सराउंडिंग में है। तो फिर आपको ये भी देखना होता है इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या विक्टिम्स जो हैं, जो प्रोबेबली इफेक्टीज हैं, वो कितने दूर या करीब हैं उस जगह से जहाँ पे आप कोई स्टेप ले रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इफेक्ट क्या है कि इफेक्ट ऑफ द एक्शन ऑन विक्टिम्स जो है वो कंसंट्रेटेड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब थोड़ा सा इसमें मैं बात कर दूँ अगेन कि क्या ये जो आप स्टेप ले रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मैंने रोड बनाने का कहा, कि क्या ये एक ग्रुप पे इफेक्ट कर रहा है या ये एक ऐसी कम्युनिटी इफेक्ट कर रहा है जो कंसंट्रेटेड है, एक जगह पे लोकेलिटी में है, या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी विक्टिम्स को ढूंढना पड़ेगा, उनको जाके उनकी वैल्यू, उनकी असेसमेंट करने के लिए, उनको किसी किस्म की बेनिफिट देने के लिए, कंपनसेशन देने के लिए, या वो लोकेलिटी में एक ही जगह आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डैम बना रहे हैं और उसके करीब कुछ गांव हैं तो वो तो एक कंसर्न इमीडिएट लोकेलिटी हो गई, लेकिन उसके जो डाउन स्ट्रीम है जहाँ पे वो पानी जाता था, जहाँ से लोग फसलें लेते थे और पानी इस्तेमाल करते थे, अब वो पानी रुक के उनके पास जाएगा। तो अब वो इमीडिएट नहीं है लेकिन वो इफेक्टिव हैं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो डाउन दी स्ट्रीम हैं, दूर हैं उससे। एंड देन फाइनली वी हैव टू डिस्कस द ग्रेटनेस ऑफ हार्म। ग्रेटनेस ऑफ हार्म क्या है कि हाउ मेनी पीपल विल बी हार्म, नंबर के इफेक्टिव जो होंगे, या जिन लोगों पे इस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट होगा या पॉजिटिव इफेक्ट होगा, वट एवर इट इज़। तो अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो कितने लोग इससे, नंबर में कितने लोग इससे इफेक्ट होंगे, ये सब चीज़ें देखना जो है ये कहलाता है इशू इंटेंसिटी। सो मैनेजर जब भी कोई डिसीजन लेता है और उसको वे कर रहा होता है कि एथिकल है या अनएथिकल है, तो उसमें उस अपनी वैल्यूज़ को भी देखता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी देखता है, वो अपने स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स यानी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस्म की उसको सपोर्ट मिल रही है, परफॉर्मेंस, अप्रेजल, ये सारी चीज़ें। बट एट द सेम टाइम वो उस इशू की इंटेंसिटी को भी देखता है कि अगर मैं ऐसा स्टेप ले लेता हूँ तो कितने लोग इससे इफेक्ट होंगे, कितने लोग को मुझे जो है वो इमीडिएटली इफेक्ट होंगे, कितने डाउन द स्ट्रीम या डाउन द रोड इफेक्ट होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म क्या है, कितने चांसेस हैं कि लोग इफेक्ट होंगे। ये सब चीज़ों को देखने के बाद फिर अब वो जो स्टेप लेगा वो एट द एंड ऑफ द डे एथिकल या अनएथिकल डिफाइन होगा। इसमें थोड़ी सी एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि यहाँ पे जब वो डिसीजन लिया जाएगा तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट के अंदर, या स्पेशली इकोनॉमिक्स में तो लाजमी कहीं ना कहीं आएगा, कि जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो स्टेप हम ले रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ द इफेक्टिव्स, कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट और अदर इश्यूज, कि उसकी कॉस्ट क्या आ रही है और फिर इसके पॉजिटिव इफेक्ट कितने हैं। और वे करते हैं कि इसके इफेक्टिव्स ज़्यादा हैं कि इसके बेनिफिशरीज ज़्यादा हैं। और अगर किसी प्रोजेक्ट के बेनिफिशरीज की तादाद कई गुना ज़्यादा हो और इफेक्टिव्स की तादाद कम हो, तो फिर किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि डिसीजन मेकिंग जो थी वो राइट थी। और इसके भी फिर आगे पैरामीटर्स हैं, वो जैसे कहीं फर्दर डिस्कशन आएगी हम उसका जिक्र करेंगे। नाउ इट्स अबाउट टाइम टू हैव अ लुक ऑन एथिक्स इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, कि इंटरनेशनली एथिक्स को हम कैसे देखते हैं और एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कोई स्टेटमेंट या कोई रूल्स या प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं।
पहली जो बात है वो ये है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स आर नॉट यूनिवर्सल। क्यों? क्योंकि एथिक्स जो होते हैं वो शेप अप होते हैं, उसको उसकी डेफिनेशन डेवलप होती है सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। कुछ चीज़ें हमारे कल्चर में एथिकल हैं तो हो सकता है किसी और कल्चर में उसको अनएथिकल समझा जाता हो, या हमारे नज़दीक जो अनएथिकल है हमारे कल्चर में हो सकता है वो किसी और कल्चर में वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो। सो यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं आप दे सकते। आप ये नहीं कह सकते डूइंग दिस थिंग इज करेक्ट, डूइंग दिस थिंग इज रॉन्ग। हाँ, कुछ चीज़ों की है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि किसी को बिजनेस में बेनिफिट लेने के लिए ब्राइब देना इज रॉन्ग, हमारे नज़दीक तो रॉन्ग है, बट फॉर सम पर्सन्स हो सकता है वो से दे मे गिव इट अ न्यू वर्ड कि जी ये कंपनसेशन है या ये कमीशन है, ये सर्विसेज चार्जेस हैं। तो कुछ लोग कहें कि नहीं इट्स अ कमीशन बेस्ड तो मैनेजमेंट होती है, बट इट इज अगेन अनएथिकल या अनएथिकल, इट्स अ डिबेट। बट अगेन व्हाटएवर यू ट्राई टू फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ समथिंग एथिकल और अनएथिकल, it starts from your own culture, so therefore it's very difficult कि आप एक universal definition दे सकें। But then there must be something. So for example, there is a Foreign Corruption Act, Practices Act, which says कि it's illegal, it's wrong कि आप किसी फॉरेनर को कोई टोकन या पैसे दे दो और अपने बेनिफिट के लिए। It's basically an American practice, बट हमारे यहाँ भी रूल्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन प्रैक्टिस भी किए जाते हैं। सो मेकिंग इट इलीगल टू करप्ट अ फॉरेन ऑफिशियल, येट टोकन पेमेंट्स टू ऑफिशियल्स आर परमिसिबल व्हेन डूइंग सो इज एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इन दैट कंट्री। सिर्फ आप उस बंदे को उस वक्त टोकन दे सकते हैं, उस वक्त कमीशन दे सकते हैं जब जिस कल्चर से वो आया है वहाँ के कल्चर में कमीशन देना जो है वो कोई बुरी बात ना समझी जाए। ये एक जनरल डेफिनेशन है, बट इनिशियली द पॉइंट इज कि यूनिवर्सल डेफिनेशन देना एथिक्स की एक डिफ़िकल्ट है, बिकॉज किसी कल्चर में कुछ चीज़ परमिसिबल होती है, अलाउड होती है, और किसी कल्चर में वो चीज़ नॉट परमिसिबल या नॉट अलाउड होती है। फाइनली द लास्ट थिंग इज टू डिस्कस द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के 10 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया है। द फर्स्ट कैटेगरी टॉक्स अबाउट द ह्यूमन राइट्स एंड द प्रिंसिपल 1 इज to support and respect the protection of international human rights within their sphere of influence। कि यूनाइटेड नेशन ने अपने एक रूल्स डिफाइन किए हैं कि उनका बेसिक प्रिंसिपल ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्या है कि जहाँ जहाँ यानी जो जो उसकी मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ वहाँ ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की जाए, यानी बेसिक जो ह्यूमन के राइट्स हैं, राइट टू लिव, राइट टू स्पीक और ये बाकी चीज़ें, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, इनको प्रोटेक्शन दी जाए। प्रिंसिपल 2 क्या है? मेक श्योर बिजनेसेस कॉर्पोरेशंस आर नॉट कम्प्लिसिट इन ह्यूमन राइट अब्यूसेस, यानी ये भी मेक श्योर करना कि जो डिफरेंट कॉर्पोरेशंस हैं किसी भी मुल्क के अंदर, जैसे जैसे बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, वो किसी किस्म की ह्यूमन राइट अब्यूसेस में इन्वॉल्व ना हो, यानी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कोई काम ना कर रही हो। प्रिंसिपल 3 to 6 आर बेस्ड ऑन लेबर स्टैंडर्ड्स, और प्रिंसिपल 3 क्या है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द इफेक्टिव रिकग्निशन ऑफ द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी लेबर्स के लिए ये अलाउड है कि वो अपनी एसोसिएशन बनाएं और फिर वो मिल के उस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से बार्गेनिंग कर सकें, निगोसिएशन कर सकें, और लोगों और ख़ास तौर पे जो उनके मालिक हैं उनके साथ बार्गेनिंग कर सकें। सो एसोसिएशन बनाना लेबर राइट्स के लिए, लेबर को अपने प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए ये अलाउड है अंडर द यूएन लॉ, और ये इसको प्रमोट बल्कि करता है यूएन के जो लेबर है वो अपने राइट्स के लिए अपने एज अ ग्रुप जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और देन दे कैन बार्गेनिंग का मतलब ये है कि अपने राइट्स के लिए वो मालिकों से या जिस इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर रहे हैं उनसे बातचीत कर सकें। प्रिंसिपल 4 क्या है? द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स एंड कंपल्सरी लेबर, यानी जब भी आप लेबर को इन्वॉल्व करेंगे तो आपको उसको पे करना पड़ेगा, फोर्स लेबर नहीं आप करवा सकते। जैसे आप अक्सर सुनते हैं कि जी
कहीं आप न्यूज़ पढ़ने को मिल जाती है कि जी फलां जगह पुलिस ने एक्शन किया और पता ये चला कि वहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों से काम करवाया जाता था, उनको सिर्फ खाना पीना दिया जाता था और वो भी किसी हद तक कम ही दिया जाता था, पैसे वगैरह कोई उजरत कोई नहीं दी जाती, सैलरी कोई नहीं थी, कोई वेजेस नहीं थी। सो फोर्स लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड है अंडर यूएन लॉ। एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये रॉन्ग है। आप जब भी लेबर को हायर करेंगे यू नीड टू पे देम, नीड टू बी डिस्कस्ड अर्लियर कि जी आपकी ये सैलरी है और ये आपको इस टाइम पे मिलनी है। सैलरी एंड द टाइम शुड ऑल्सो बी डिस्कस्ड। अगर रूल को ज़्यादा डिटेल में देखा जाए तो ये रूल आगे चल के ये भी बताता है डिटेल में, यहाँ पे तो खैर स्लाइड पे नहीं मेंशन, बट टाइम और सैलरी की अमाउंट जो भी है, वेजेस जो भी हैं, वो कब मिलनी है और कितनी मिलनी है ये भी डिस्कस इनिशियली किया जाता है। सो आप किसी को फोर्स लेबर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रिंसिपल 5 है द इफेक्टिव अबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, कि चाइल्ड लेबर को अबॉलिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए इफेक्टिवली। यानी छोटे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, छोटे बच्चों से काम नहीं लेना चाहिए उनको। जैसे आप देखते हैं छोटे बच्चे आपको मैकेनिक्स की दुकानों पे या पाकिस्तान में स्पोर्ट्स गुड्स की इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वॉल्व थे, टेक्सटाइल मिल्स में भी आपको छोटे मोटे काम करते हुए नज़र आते हैं, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में नज़र आते हैं आपको लोग बच्चे छोटे काम करते हुए। तो बच्चों को एजुकेशन, दे हैव अ राइट टू एजुकेशन, और उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। और उनसे अगर आप उनको एजुकेशन नहीं भी दे पा रहे, जो कि देनी चाहिए, फोरमोस्ट है, तो लेकिन फिर भी आपको उनसे कोई काम नहीं लेना चाहिए। बच्चे हैं, दे हैव अ राइट टू प्ले, दे हैव अ राइट टू गेट एजुकेशन, बट फोर्स लेबर जो है, फोर्स चाइल्ड लेबर स्पेशली जो है, इसको अबॉलिश किया जाना चाहिए इफेक्टिवली। दैट इज द प्रिंसिपल नंबर 5 ऑफ यूएन। प्रिंसिपल 6 क्या है? द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप ये कहें कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ जो मेन हैं दे आर अलाउड टू वर्क, वीमेन आर नॉट अलाउड, तो दैट इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर यू आर क्रिएटिंग अ डिस्क्रिमिनेशन। या आप ये कहते हैं कि मेल वर्कर्स को जो है प्रायोरिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट तक जा सकते हैं, वीमेन जो हैं दे आर नॉट गुड डिसीजन मेकर। अगर आप एक बायसनेस रखने जहन में तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हालांकि प्रूफ अदर वे अराउंड हुआ है। रिसर्च ये कहती है कि ख्वातीन जो हैं दे आर बेटर डिसीजन मेकर्स और वो ज़्यादा मेहनत से काम करती हैं। सो ये तो रिसर्च भी कहती है और प्रैक्टिकली प्रूफ भी होता है। बट अगर आप किसी किस्म का बायसनेस रखें, इट कुड बी अ बायसनेस अगेंस्ट जेंडर, it can be a bias against age, it can be bias against a certain person belonging to a culture। आप कहते हैं कि ये लोग रखने, ये वाले कल्चर वाले लोग नहीं रखने, ये ज़बान बोलने वाले लोग नहीं रखने, ठीक है। सो दैट इज अ बायसनेस, दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। एवरीवन हैज अ राइट टू वर्क। देन वी हैव प्रिंसिपल 7 to 10 based on environment. The principle number 7 says that to support a precautionary approach to environmental challenges। precautionary approach होनी चाहिए, क्यूरेशन अप्रोच नहीं होनी। जैसे मैंने कहा था उस वक्त प्रिवेंशन एंड क्योर, लास्ट लेक्चर में मैंने वर्ड यूज किया था प्रिवेंशन एंड क्योर, और मैंने कहा था प्रिवेंशन होनी चाहिए, क्योर तो फिर करना ही है जब कोई बीमारी फैल जाएगी। तो प्रिवेंटिव होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर कॉरपोरेशन को, हर कंट्री को, हर मेंबर कंट्री को यूएन ये कहता है कि हमें प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को ख़राब होने से पहले बचा लें, उसको बचाए रखें। प्रिंसिपल 8 क्या है? अंडरटेक इनिशिएटिव टू प्रमोट ग्रेटर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जिसमें हम अपने लोगों को, अपने कॉमन लोगों को एजुकेट करें। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को एजुकेट करें कि व्हाट इज़ एनवायरमेंटली ग्रीन और what is not greener। Remember the light green and dark green approach। तो हमें ये डिस्कस करना चाहिए वाइडली, और इसको एक डिबेट, एक डिस्कशन पॉइंट बनाना चाहिए कि हाउ वी शुड मूव फ्रॉम लाइट ग्रीन टू डार्क ग्रीन, बिकॉज ग्रीन इज द कलर विच इज ऑफ लाइफ,
इट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सो अगर एनवायरनमेंट आप प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, देन वी आर ऑन प्रिंसिपल 7 and 8. Finally, the last two principles which we are to be discussed in today's lecture are principle 9 and 10 regarding environment again. 9 says that encourage the development and diffusion of environmentally friendly technology. Development means कि डेवलप किया जाए, डिफ्यूजन का मतलब है डेवलप होगी लेकिन फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन को अलाउ किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए कि अच्छी टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाए। फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं सस्टेनेबल वेज ऑफ एनर्जी जनरेशन की, कि आप ऐसी एनर्जी के सोर्सेज को आइडेंटिफाई करें जो सस्टेनेबल हो, जिसका एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल विंड है, विंड को यूज करें बजाय इसके कि आप कोल के तो एनर्जी प्रोड्यूस करें जिसके इमिशन ऑफ गैसेस होगी वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगी। बेटर ये है कि आप ऐसे मैकेनिज्म जिसमें सोलर है, विंड है। अब ये ना सिर्फ यूएन चाहता है कि इस किस्म की चीजें डेवलप हों, बल्कि फिर उसको अडॉप्ट करने में भी फैसिलिटेट करता है और कर रहा है कि ऐसी चीजें फिर और पॉलिसी का हिस्सा बन जाए किसी मुल्क की, और फिर उसके ऊपर काम करें और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। Lastly, we are going to discuss principle number 10. It says businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. It's basically coming from the ethics, may not be directly about the environment, but general specific environment. हाँ, organization की बात करें तो ठीक है कि ऐसी practices को हमें रोकना चाहिए जो करप्शन को फैलाएं, जो ब्राइबरी, बिकॉज ब्राइबरी हमेशा उस चीज के लिए, रिश्वत हमेशा उस काम के लिए दी जाती है जो गलत होता है। कभी आपने हार्डली किसी को देखा होगा जो किसी अच्छे काम के लिए रिश्वत दे रहा होगा। सो जब रिश्वत दी जाएगी तो गलत काम होगा, और जब गलत काम होगा तो उसका इल इफेक्ट ही होगा सोसाइटी के ऊपर, कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होने लगा। सो विद दिस पॉइंट आई थिंक इट्स अबाउट टाइम टू एंड द लेक्चर, और आई एम लिविंग फॉर यू वन थॉट दैट we should be always thinking in terms of ethics. हमें हर डिसीजन लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये एथिकल है या अनएथिकल है। रिमेंबर, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि मॉरल डेवलपमेंट क्या है, उसके स्टेजेस क्या हैं, फिर हमने स्टडी किया कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो एज अ मॉडरेटर इफेक्ट करते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, पर्सनल वैल्यूज हैं, स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स हैं और इशू इंटेंसिटी है। उसके बाद हमने फाइनली लास्ट कंपोनेंट ऑफ द लेक्चर में ये डिस्कस किया कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर एथिक्स को कैसे देखा जाता है। अगर इसकी कोई इंटरनेशनल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अच्छे प्रिंसिपल्स, 10 प्रिंसिपल्स यूएन ने डिफाइन किए हैं अपने मेंबर कंट्रीज के लिए, जो हमारे लिए हमेशा एक पॉइंट ऑफ थॉट है, फूड फॉर थॉट है। ज़रूर सोचिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफिज़।